with your permission, papers laid against my name, papers mentioned against my name in the revised list of business on the table. Yes, yes, mentioned against my name. That's what I Dr. said. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission, I beg to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you, sir. Sri G.M. Siddeshwara. Sir, with your permission, I rise to lay the paper on the table of the House listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Sri Krishan Pal. महोदय, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समक्ष वर्णित दस्तावेजों को मैं सभा के सदन पटल पर रखता हूं। Sri Y.S. Chowdhury. Sri Y.S. Chowdhury? No. Sri Babul Supriyo. Sir, with your permission, I rise to lay papers listed against my name at serial number 9 in today's revised list of business. Thank you, sir. Messages from Lok Sabha Secretary General to report. I beg to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 6th of May 2015 passed 1. The Constitution 122nd Amendment Bill 2014 and 2. Adopted a motion informing that the Lok Sabha concurs in the recommendation of the Raj Sabha that the Lok Sabha do agree to leave being granted to withdraw the Coal Mines Special Provisions Bill 2014, which was passed by the Lok Sabha on 12th of December 2014 and laid on the table of the Raj Sabha on the 15th of December 2014. I lay a copy of the Constitution 122nd Amendment Bill 2014 on the table. Reports of the Committee on Papers laid on the table. Dr. C.P. Thakur. Sri Ali 230वें Tak. और 232वें स्तर के दौरान राज्यसभा के पटल पर विलंब से रखे गए सरकारी कंपनियों संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षणों के लेखकों के संबंध में 246वें और 247वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूं। Now, report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forest. Sri Ashwini Kumar. Sri Bhupendra Singh. Deputy Chairman, sir, I lay the present following report in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forest. One, the 158th report on demands for grants 1516 of the Department of Science Technology, 259th report of demands for grants, Department of Biotechnology, 260th report of demand for grants 1516 of Ministry of Earth Sciences. Thank you, sir. Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Energy. Sri V.P. Singh Badnor. Sir, with your permission, I would like to lay on the table the House a copy in English and Hindi of the 4th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Energy 2014-15 on Electricity Amendment Bill 2014 pertaining to the Ministry of Power. Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas. Sri Mansukh L. Mandavia. Sir, I beg to lay the 5th report of the Standing Committee of Petroleum and Natural Gas as listed in today's order paper. Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment. Srimati Vijaya Satyanath. The permission of the Chair, I beg to lay on the table of this August House the report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment, a copy English and in Hindi of the 15th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment 1415 on the Rights of Persons with Disabilities Bill 2014 pertaining to the Ministry of Social Justice and Empowerment. Statement of the Department related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment. Again, Srimati Vijaya Satyanath. With the permission of the Chair again, I beg to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following statements of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment. Now, matters to be raised with the permission of the Chair. सारे एमपीज को एमपी होने के नाते कुछ विशेषाधिकार, जो विशेषाधिकार हनन के लिए नियमावली में नियम भी दिए हुए 187 श्री मैडम, पिछली सरकार जब थी तो माननीय नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली जी थे,
उनके फोन टेप का कांड उठा था और उस पे पूरा सदन ने एक मत एक ध्वनि से एक साथ होकर चिंता व्यक्त की थी और तत्कालीन सरकार ने ये भी कहा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। श्रीमान, वो मैटर विशेषाधिकार समिति को चला गया क्योंकि चेयर ने उसको अनुमति दे दी। कल विशेषाधिकार समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में आश्चर्यजनक रिपोर्ट है श्रीमान। उस रिपोर्ट में विशेषाधिकार समिति ने कहा कि अगर एमपी का फोन से कोई कॉल निकाली जाती, कोई भी निकाले, या एमपी किसी को फोन करे या उनकी कॉल डिटेल निकाले, तो वो विशेषाधिकार एमपी का नहीं बनता। श्रीमान, अगर ये हो गया, तो अगर ये कर दिया गया तो कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति हम लोग के टेलीफोन कॉल निकाल लेगा। हमको कौन सूचना दे रहा, कौन हमको फोन कर रहा, कौन हमारे अधिकारों को हरण कर रहा, हम सरकार की कौन सी रिपोर्ट कहाँ से ले रहे हैं। कल बैंक स्टेटमेंट निकालना शुरू कर देगा, ये भी हमारा विशेषाधिकार नहीं रहा। तो श्रीमान, फिर तो सरकार बिल्कुल फ्री हो जाएगी फोन टेप करने के लिए। ये ऐसा नहीं, ये छोटा मामला। और अरुण जेटली जी का मामला था, इस बारे में मैंने उनका नाम लिया कि उससे जुड़ा हुआ है। इस पे मैं चाहूंगा कि सदन भी इस पे बोले। और श्रीमान, मेरा आपसे निवेदन है, इस रिपोर्ट को फिर से वापस होना चाहिए और विशेष रिव्यू करे। और विशेषाधिकार समिति हमारे विशेषाधिकारों पर अगर कटौती करेगी तो एक गंभीर मसला उठेगा। इस हमारे मैं इस पे आपकी चाहता रूलिंग। Point of order, 187 and also 199 and 200. These are the rules. That's the presentation of the report of the committee and the consideration of the report. The report has been presented yesterday of the Committee of Privileges. Sir, this House, even before this matter was referred to and the report came, last year, in the presence of the Honorable Prime Minister, Home Minister and the Leader of the House, we had raised a matter and the entire opposition had got up and asked from the government the tapping of the phones and surveillance, that who is giving the authorization not only of the senior political leaders, sitting members of parliament. It's question of privilege is one issue. Question of your fundamental right and right to privacy is another issue. There is a law in this country that under what circumstances and authorization whose phones can be tapped and the reasons to be recorded in writing. But now it has become rampant. Even, it's not only here, but there are many other prominent people who have been complaining, including members of the judiciary, senior members of the judiciary, senior civil servants. But we want to know, when the Committee of Privileges was seized of this matter, and this was raised earlier in the House, and we had a situation, the backdrop was that two of the ministers of the present government had complained. And we had said then, when the Home Minister had said that they have not authorized, we wanted to know from the Prime Minister which agency is doing it, because we know that that is happening. And that is illegal. And therefore, unless and until this issue gets resolved, we will have to defend our rights and our privileges, because we cannot allow India to be converted into a state where there is an atmosphere of distrust, fear and suspicion, and we are converted into a police state. So if this is happening, we will have to then demand an independent inquiry headed by a sitting Supreme Court judge, so that the agencies can be summoned by the court and they will have to respond, because the government is in denial. And this is a serious matter, sir. I think even what Naresh Agarwal has raised, this has to be revisited. This is a serious matter. Okay. The governments have fallen on that in the past. No, you must. About the yesterday's report, and you are taking it to that extreme where nothing is happening and you are creating out of nothing. सभापति महोदय, अभी दो विषय आया है। Now please, Mr. Naqvi, please. Mr. Naqvi, please. एक विषय माननीय नरेश अग्रवाल जी ने लिया है और जिसके समर्थन में कई माननीय सदस्यों ने बात रखी है, जिसमें कि प्रिविलेज से संबंधित माननीय संसद सदस्यों के प्रिविलेज से संबंधित मुद्दा है। उसमें प्रिविलेज कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें कि इस तरह की फाइंडिंग हम लोगों ने देखी है, जिसमें कहा गया है कि कॉल डिटेल्स अगर एमपीज की कोई लेता है तो वो प्रिविलेज का मुद्दा नहीं बनता।
उसमें जो लगभग सभी जो सहमति दिखाई पड़ती है वो ये दिखती है कि जो एमपीज की कॉल डिटेल्स लेने का जो भी कोई अपराध करता है बिना जानकारी के, तो निश्चित तौर से वो प्रिविलेज का मुद्दा बनता है। इस संबंध में अगर प्रिविलेज कमेटी इसको रिव्यू करे तो मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा। No, so after I will allow you. No, Sir, as a member of the privileged committee, you chair the that So, committee. in that case- So I'm not going into the issue. Yeah, But yeah. as a member, I understand, I think there's a very strong sentiment that we need to revisit I will- it and I will come enlarge. Sir, my proposal, and enlarge that proposal only the tapping question of today's finance minister's phone, enlarge it from there to the overall issue of phone tapping. I think that is a correct point, and that has been raised by Mr. Naresh Agrawal and Mr. Anand Sharma, and I think the House should accept it, and as a member of the privileged committee, I beseech you also that we should take it into consideration. Convene a meeting and we'll definitely take that into consideration. Okay, now see, sit down. See, well, I heard, I would say I heard with attention, please. I heard with attention the call attention raised by Mr. Naresh Agarwal and the issue supported by Mr. Anand Sharma, Sri Yechuri, and the reaction of the government also. I would like to say one thing, that the report is before the House. House is supreme. House can discuss, accept, reject. The House has every right. But now the suggestion has to come to revisit it. That is a suggestion come. And Mr. Naresh Agarwal wanted to reject it also. Since he raised it on a point of order, I will come back with a ruling on that. But however, and I would say, taking into account the suggestions which have been made here, to revisit it. How it can be done, I will come back to the House. Now, the procedure. Issue is not only the question of revisiting. I said- Revisiting the finance minister's complaint. The issue has been enlarged. The larger section. Enlarged. And I think therefore we should say that we I will have a agree. look, don't say revisit that issue. We will take that larger question. No. सीरियस विषय है और इसमें हम लोगों को एक प्रिविलेज दिया था कि हम लोगों को टेलीफोन राज्यसभा की तरफ से प्रोवाइड किया था, या तो उसको वापस ले ले, सारे प्रिविलेजेस वापस ले ले। अगर वापस नहीं लेते हैं तो कम से कम इस इशू को कि हम लोगों के फोन टैप्ड है, हम लोग इस शंका में बैठे रहते हैं, बात करते हैं, फोन उठाते हैं, ये पहले कह देते हैं जिससे बात करते हैं कि आप हमसे बात कर रहे हैं, जान लीजिए हमारा फोन टेप हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोगों को पार्लियामेंट का वर्क करना है तो ये तो इम्पॉसिबल वर्क हो जाए, इसलिए इसको कंसिडर करिए और मैं बिल्कुल इस पे एग्री करता हूं। हम लोग की पार्टी भी एग्री करती है कि इसको आप रिविजिट ही नहीं करिए, बल्कि रिविजिट के साथ में इसको एनलार्ज करिए और फोन टेपिंग को भी नो प्रॉब्लम सर, वन मिनट, ये दो इश्यूज अलग अलग हैं। इन दोनों इश्यूज में इस पर अगर किसी तरह की जो बात माननीय आनंद शर्मा जी ने कही, अभी मिश्रा जी ने कही, अपने सीताराम येचुरी जी ने कही, उस पर अगर उनको कोई बात कहनी है तो नोटिस दें, उस पर चर्चा नहीं, ये जो फोन टैपिंग वाला विषय कह रहे हैं, ये दूसरा विषय है वो। No, notice I will come back to you. As a member of the अभी notice की जरूरत नहीं, yeah. What is same thing? Shri Digvijay Singh ji, Anything new? Shri Sitaram Yechuri ji, myself और You support it, isn't it? That's all. मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये जब अरुण जेटली जी उधर थे, ये उस समय की टेपिंग का मामला है, लेकिन सारे सदन के सदस्यों ने इस सवाल को उठाया था, तो प्रिविलेज कमेटी के सामने हम लोग थे, होम सेक्रेटरी से लेकर के दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तक को हमने विटनेस के रूप में बुलाया था। दोनों अधिकारियों ने माफी मांगी और कहा कि ये सरकार के कहने पर, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सरकार के कहने पर नहीं हुआ था, किसी प्राइवेट डिटेक्टिव ने अपने आप ही टेलीफोन कंपनियों को मोबिलाइज करके श्री अरुण जेटली जी की टेपिंग की थी। एक तो जो आरोप आप लोगों पर लगा था आनंद शर्मा जी, वो उन्होंने रिफ्यूट किया, उस समय आरोप आप पर लगे जो सरकार आपकी थी। लेकिन नहीं, मेरी बात सुनिए ना, जेटली जी का जब मामला उठा था इसी सदन में, उस समय सरकार आपकी थी, तो आप भी इससे बरी हुए, आप उस प्रिविलेज को भी एंजॉय कीजिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि ये लार्जर इशू of discussion. सिर्फ प्रिविलेज I am accepting. में ही आता है। I am accepting the suggestion. Showing the solidarity
My dear Taggi, I am accepting the If the suggestion. government is also on the same page, we can bring a resolution and pass it unanimously. No, please, no, that is not the procedure. No, I say, I, Mr. Naresh ji, Mr. Naresh ji, नोटिस दे देता हूँ I accept नोटिस it. देता हूँ इसको डिस्कशन करा लिया जाए कि क्या क्या विशेष Yes, no dispute. Government had responded what Mr. Naresh Agrawal No, has it read. is- Now Mr. Anand Sharma has read something else. He wants an inquiry That's what commission I am to be saying. instituted. I want government response on that also. No, no, So listen, please- no, that is not No, no, needed. that's also No, important. sir. Because it's a separate No case. needed. No. That is not, sit down. What he is saying that The phone House- tapping is going on. Why you? It's already in No, existence. I don't want a discussion on this. The chair is accepting it, then what is your problem? Sir, we respect, sir. Chair is Sir, we accepting it, no more discussion. The chair is accepting it, then Sir, what is your problem? Enlarge That's it. what I am saying, I will come Fine, with a fine, ruling. fine. No, sit down. See, I am, the point is, yes, there are two issues, I agree. For the first thing I told you, even though as deputy chairman, I am the chairman of the privilege committee also, no prestige issue, no personal issue in this. What is the decision of the House, that will be accepted. And I have no problem in that. And so, the decision of the House is that it should be re-examined, no problem, we will do that. We can do that, that is the difference. Then with regard to the other point, yes, enlarging the scope of that. That is what I said, for which I have to look into the rules. Maybe a motion may be needed. I will come back to you what is the procedure. But I said I will consider it and come back to you. So there is no question of, there is agreement on that. No, that's what I am saying. After seeing the rule, I will come back to you. What is the procedure? Whether there's No, notice can be given and after that no, government can I respond on said, that. no, you Home understand. Minister is here. No, Home no. Minister can No, clarify. why do you want to create a problem? No, please. See, why do you, Mr. Rajesh Shukla, the chair has said, chair will examine and come back to you with the ruling, what is to be done. What more you want? No, two things. I already said there are two issues. Yes, I said there are two issues. Number one is revisiting the committee report, for which I said even though I am the chairman of the committee, I have no prestige, no personal problem. What House decides, we will accept. No problem. And the sense of the House is that it should be revisited. That I already promised. Second is enlarging the scope. That is the point. For which I said, what should be the procedure, I will come back to you. I will examine and come back to you. I didn't say I will. Yeah. उसको No, enlarge yes. करना ज्यादा I will come important back to है, you, no problem. qualitative से बहुत ज्यादा important Yeah, है, yeah. इसलिए उससे आप बचने की कोशिश न करिएगा। No, not at all. विजिट करने की बात कह रहे Not हैं at all. और उसको enlarge करने की बात कर रहे हैं। Yeah. माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि enlarge करेंगे। Yes. कौन dictate No, किसी को Rahman कौन- Khan ji, say, please. That when certain matters are referred to the committees, the committee in its wisdom can enlarge its scope. We have done it. In one case, the privilege committee of this house has enlarged when it was felt by the committee that a wider consultation, wider areas should be looked into. We have done it. There is precedence. Okay. You have the power to do it. I request you to do it. I will take it on that suggestion also. Now, yeah, that's why I said, that suggestion will be taken note of, considered. में एक नोटिस हमने दी है सीमन जी सरकार एक महीने What से is this? लगातार अखबारों में निकाल रही सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जा रहा है कि महंगाई समाप्त हो गई You are है, monopolizing the महंगाई house. कम हो गई है नरेश और जी। मैं रोज अखबार में ये आ रहा सीमन सरकार की तरफ से रूल बुक। हमने नोटिस दी है महंगाई चरम सीमा पे है आप सिर्फ दिल्ली में देख लें महंगाई का क्या हालत है तो मैंने उस पर नोटिस दी क्योंकि सब्जियों के दाम दालों के दाम खाने की चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं और सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारा थोक भी जो मूल्यांकन है वो गिर गया और फुटकर भी गिर गया महंगाई के हमारे तर्ज था पूरे देश की जनता श्रीमंत सरकार फर्जी आंकड़े दे रही है तो मैंने हमारे नोटिस दिया है कि कम से कम उस पर एक डिस्कशन हो जाए एक चर्चा करा दी जाए जिससे पता तो लग जाए कि सत्यता क्या है मैंने इसमें एक नोटिस दी Naresh ji, yes, I agree, you have given notice under 267 for suspension of the list of business of the House, but this is an important subject I concede. You can give a notice on specific rule, then the chairman may consider it. So therefore, I reject your
267 notice. Now Sri Pramod Tiwari, zero hour submission. अभी हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं और मैं समर्थन करता हूं एमपीज के जो प्रिविलेज की बात हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि हम नतमस्तक होते हैं भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। उन्होंने सिर्फ सामान्य नागरिकों के भी कुछ अधिकारों जो मूलभूत अधिकार हैं उनकी रक्षा की गारंटी दी थी। इस देश की सबसे खूबसूरत संविधान की एक ही चीज है और वो है कि धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जेंडर के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर इस देश के इतिहास को उठा के देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर जंग आजादी की लड़ाई लड़ी। जिस कश्मीर का हम जिक्र करते हैं उस कश्मीर की हिफाजत में ब्रिगेडियर उस्मान ने अगर अपना योगदान न दिया होता तो शायद आज कश्मीर का नक्शा ये न होता। हवलदार अब्दुल हमीद अगर न लड़ा होता तो निश्चित रूप से शायद हम पहली बार टैंक तोड़ने का गौरव न हासिल करते। और उसी तरह हिंदुओं ने हमारे अपना खून बहाकर इस देश की हिफाजत की है। सिखों ने सबसे पहले निर्मल सिंह सेखों जैसे अमर शहीद ने सेवर जेट को मार गिराया था। मेरे कहने का सिर्फ आशय यह है कि देश की आजादी अगर देखें तो भगत सिंह ने अगर फांसी के फंदी को चूमा था तो अशफाकुल्लाह ने भी चूमा था। पर आज कुछ माहौल बदला सा मुझे नजर आता है। कुछ लोग इस देश के उस खूबसूरत गुलदस्ते को तोड़ देना चाहते हैं। अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए वो जाति और धर्म के आधार पर इस देश का मुकद्दर लिखना चाहते हैं, इस देश का नया संविधान के खिलाफ बात करते हैं। और वो ही चाहते हैं कि इस देश के निर्माण में सबका योगदान न हो बल्कि मुट्ठी भर लोगों का योगदान हो। मैं कहना चाहता हूं बहुत दृढ़तापूर्वक वो तानाशाही होगी, वो लोकतंत्र नहीं होगा और लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। यद्यपि वो चाहे भी तो ये कांग्रेस पार्टी की चुनौती है और जो ऐसे विचारधारा के लोग हैं कि अगर वो प्रयास करे भी तो वो कभी देश में तानाशाही नहीं ला सकते हैं। इस देश में सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। मैं एक बात कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के गठबंधन में बैठे हुए हैं और कहते हैं कि मुसलमानों के अधिकार को, वोटिंग राइट को छीन लेना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के वोटिंग राइट की गारंटी आर्टिकल 325 भी देता है और 325 जब तक संविधान का अंग है तब तक किसी भी जाति और धर्म के आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता है। जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं हम उन्हें चेतावनी भी देना चाहते हैं और चाहते हैं पीठ की तरफ से चेतावनी है कि संविधान के तहत अगर वो लोग इस सदन के सदस्य हों या किसी सदन के सदस्य हों, मुसलमानों को भी वही अधिकार है जो और जाति और धर्म के लोगों को अधिकार है। उनके मताधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। ये अगर अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो एक समिति बने सदन की और देखे कि क्या ऐसे लोग संविधान की Time over, not going on record. Time over. Yes, all the names can be added. मुद्दे को समर्थन रखते हुए मुझे दूसरे मुद्दे पे कल मैंने नोटिस दिया था और यहाँ उठाया था कि दाऊद इब्राहिम को लेकर जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने दिया था एक लिखित जवाब में कि गवर्नमेंट को उसके बारे में वेयर अबाउट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये मैंने कल यहाँ नोटिस दिया था। और माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा था कि माननीय गृह मंत्री जी इस पर स्टेटमेंट देंगे। तो चूंकि गृह मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, ये बता देंगे कब इस पर स्टेटमेंट देंगे। श्री संजीव, डू यू वांट टू रिएक्ट नाउ और लेटर? संजीव कुमार, श्री संजीव कुमार। मैं आपके महोदय मैं आपके माध्यम से महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार एवं इस सदन का ध्यान नो यू वांट टू रिएक्ट नाउ? जो नेता विरोधी दल ने बात कही है अभी बोलना चाहते गृह मंत्री जी संजीव कुमार में अपना स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद मुझे लगता है क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। नो स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट कब देना बोलना ही। हाँ वही व्हेन यू विल गिव स्टेटमेंट, दैट्स ऑल। I am ready to give clarification regarding this deputy chairman. Then we'll fix. No. No. After 0 hour is question hour. नहीं
ये 0 ओवर के बाद होना चाहिए, लोगों के नाम लिए हुए आपने, ये बीच में कोई बयान नहीं होना चाहिए। आप 0 ओवर के लोगों को बुलाइए, इसके बाद जब समय मिला मंत्री जी को वो तब दें। That is correct. No, see, I think I should go by the good suggestion of Honorable Sharad Yadav ji. 0 over, there are members agitated over this. No, so many members are given, repeated, and they are also equally important. But that doesn't mean that minister should not give the statement. Maybe immediately after calling attention. Yeah. तो अभी गृह मंत्री जी तैयार हैं, क्लैरिफिकेशन दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? No, 0. तो उसके बाद क्वेश्चन आवर है, उसके बाद और बिजनेसेस हैं, तो फिर उनकी सुविधा के अनुसार बात हम कर लेंगे, माननीय गृह मंत्री जी से बात कर लेंगे उनकी सुविधा के अनुसार। श्री संजीव कुमार, अगर अभी तैयार है तो अभी देने को। श्री संजीव कुमार प्लीज। संजीव कुमार सर, मंत्री तैयार है, दैट इज नोन टू एवरीबॉडी। महोदय, मैं आपके माध्यम से वी विल फाइंड आउट सम टाइम। मैं श्री संजीव कुमार, आपके माध्यम से सरकार एवं इस सदन का ध्यान झारखंड के जिला धनबाद स्थित सिंदरी खाद कारखाना, जो पूरे देश में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है एवं जिसे 9 दिसंबर 2002 से अकारण बंद कर दिया है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, ये कारखाना करीब 4,500 एकड़ जमीन 1952 में एक्वायर करने के बाद झारखंड अधिग्रहण करने के बाद लगाया गया था एवं उन दिनों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का चहेता प्रोजेक्ट था। महोदय, 2002 में सिंदरी का फर्टिलाइजर कारखाना जो कि चलती हालत में था एवं फायदे में चल रहा था, उसको बंद कर दिया गया। लोगों का मानना है कि उस समय सरकार वहां किसी प्राइवेट प्लेयर को उतारना चाहती थी एवं झारखंड के साथ उस समय के तत्कालीन सरकार ने कारखाना को बंद करके धोखा दिया था। महोदय, कारखाना बंद होने के बाद हजारों एम्प्लॉय बेरोजगार हो गए हैं, लाखों लोग उससे प्रभावित हुए हैं एवं जो पुराने एम्प्लॉय थे वो दर ठोकर खा रहे हैं। उनके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया है, पानी, बिजली, शिक्षा आदि बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। महोदय, लोग कारखाने की जमीन को कब्जा कर रहे हैं, करोड़ों का मशीन तबाह हो रहा है, अपराधियों का बोलबाला है, कारखाना का हॉस्पिटल, स्कूल इत्यादि तबाह हो चुका है। इस कारखाने में एक समय काफी चहल पहल होता था, देश विदेश से वैज्ञानिक और नेता आना अपना भाग्य समझते थे, लेकिन वहां श्मशान की वीरानी है। हर लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र चुनाव में हर पार्टी ये दावा करते हैं कोयलांचल में सिंदरी फर्टिलाइजर को खोलने की उनकी प्राथमिकता होगी, लेकिन चुनाव होने के बाद इस बात को भूल जाते हैं। उसी तरह महोदय, इस लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बार-बार वादा किया कोयलांचल में कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि सिंदरी फर्टिलाइजर को खोला जाएगा, लेकिन महोदय वादा सिर्फ वादा ही रहा। अभी हाल में जनाब विधानसभा चुनाव के बाद रसायन मंत्री ने यह वादा किया था कि कोयलांचल में जो सिंदरी फर्टिलाइजर है उसे 100 दिन के अंदर खोला जाएगा, लेकिन 100 से भी बहुत ज्यादा दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। ये माना जा रहा है कि वहां पर प्राइवेट प्लेयर उतारने की कोशिश की जा रही है। ये माना जा रहा है कुछ प्राइवेट प्लेयर को सिंदरी कारखाना दिया जाएगा, लेकिन मैं इस सदन को बता देना चाहता हूं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, कि किसी भी हालत में सिंदरी कारखाना किसी प्राइवेट प्लेयर को दिया नहीं जाएगा। अगर ऐसा करे वो होता है तो कोयलांचल के लोग आंदोलन करेंगे और आप उसको संभाल नहीं सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज। Sindri fertilizer the factory should be treated as an heritage. It is the beginning of the public sector expansion, that too on the fertilizer sector. That's it was a Shri dream project for the independent India. Okay. All right. That's okay. You mentioned you associate. Shri Mohammed, you start. Sir, recently our country has lost a brilliant sportsperson in the form of Masudur Rahman Badia, who was not only an exceptional swimmer but also an inspiration and hope for the millions of people. Despite being differently abled, he has shown the world that if you have the willpower, you can dominate
millions of hearts. A person with double amputee below the knee, he had conquered the English Channel in 1997, the Strait of Gibraltar in 2001, and the Park Straits in July 2010. He certainly deserves special recognition from the country, sir. As a country, sir, we as a country, sir, have not been much generous towards our differently abled sportspersons. The efforts one undertakes to be in the field, whatever it be, needs special applaud from us who enjoy their tremendous performance. The ace swimmer had said in last December that we are a part of society. Given the responsibility, we too can deliver just like we are doing at the various disabled games. Sir, the West Bengal government and especially our Chief Minister Mamata Banerjee has taken various initiatives for the recognition of differently abled sportspersons. She has also expressed her solidarity with the family of Masudur Rahman Badia, who passed away on April the 26th at the age of 46 years. Through this August House, sir, we demand from the government that there should be a special category of Arjuna Awards for differently abled athletes and sportspersons, and it should be named after Masudur Rahman Badia. Sir, this special recognition will inspire several of our differently abled brothers and sisters, and they will get encouragement and special recognition while living their dreams to play the game, be it any game. Thank you, sir. Thank you very much. As all those may be added, Sri Dilip Kumar Turki. थैंक यू उपसभापति महोदय जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लाना चाहता हूं। महोदय, ऐसी एक खबर है कि खान मंत्रालय ने नालको में सरकार के 10% स्टेक के विनिवेश की अनुमति दे दी है। हम सब जानते हैं कि नालको हमारे देश का, हमारे कंट्री का एक नवरत्न कंपनी है और लगातार मुनाफे पे है। साल 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार इसका टर्नओवर 7,774 है, जो कि पिछले साल के तुलना में लगभग 10% ज़्यादा है। उसी तरह निर्यात से भी नालको की कमाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस मुनाफे की कंपनी में सरकार प्राइवेट सेक्टर को हिस्सा में क्यों देना चाहती है? अगर विनिवेश के लक्ष्यों को पूरा करना ही है तो ऐसी कंपनी चुनी जानी चाहिए जो घाटे में चल रही है। नालको के सभी कर्मचारी सरकार के इस फैसले के विरोध कर रहे हैं। हमारी ओडिशा सरकार की ओर से हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने कहा कि ये बिल्कुल कतई उचित नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी सरकार के इस जन विरोधी कदम का कड़ा विरोध करती है और हम चाहते हैं, हमारा सरकार से मांग है कि नालको के विनिवेश का फैसला तत्काल वापस लिया जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद। All the names. All the okay, fine. May be ordered. Sri Rajiv Chandrasekhar. Okay. All right, that's okay, accepted. Sri Rajiv Chandrasekhar. Sir, I would like to draw the attention of the House to the growing risk to the environmentally sensitive areas like lakes and valley zones in Bengaluru due to rampant real estate projects and increasing pollution due to untreated sewage. Sir, as you are aware, my city Bengaluru is not located on a river bank, and therefore its water needs of its 1 crore plus population and groundwater levels depend largely on a network of lakes and groundwater sources. These lakes, sir, are a part of our cascading chain of lakes developed naturally and over many years to take care of the city and its ecology. However, sir, several commercial developments have encroached on or coming up near many of these lakes, including the recent shameful example of the Vartur Lake, where rampant effluent discharge caused the lake to overflow onto the roads. So this rampant unchecked corruption by vested interests and increasing levels of pollution have resulted in frustrated citizens filing many PILs seeking the intervention of the NGT and other courts. So the risk posed by rampant encroachment is only amplified by the unabated pollution of these lakes from the untreated sewage from real estate projects and other sources.
For example, sir, in the Vartur Lake case, illegal construction and dumping in and on the perimeter of the lake are dealing a huge blow to the freshwater ecosystem and biodiversity, leading to one of the largest water bodies in the city being declared a dead lake. No government agency has bothered to survey the encroachments or pollution levels. Sir, as a watchdog of the environment, the Ministry of Environment and Forests must step in to ensure that the lakes of Bengaluru do not fall victim to reckless commercialization and unchecked pollution. On behalf of the people of Bengaluru who are agitated on this issue, I request the MOEF to conduct an audit and review of all clearances and approvals given to lake bed and ecologically sensitive projects in Bengaluru on an urgent basis, to ensure that no clearances and approvals have been given to these private projects on illegal or corrupt grounds. It must conduct a study on the compliance of environmental conditions of such projects and must make these reports public, take appropriate action against those projects that have failed to comply with the mandatory environmental compliance conditions. I further urge the MOEF to conduct an audit on the pollution levels on each of Bengaluru's lakes and investigate the causes for these increasing pollution levels. Strict penalties must be imposed on real estate companies and government agencies if they are found discharging untreated effluents into lakes. So the ministry must also additionally ensure strict action against those officials who have been negligent, either for ensuring clearances without due diligence or failing to adequately monitor. Time over, time over. Nothing goes on record, time over. Srimati Viplav Thakur. थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपने प्रदेश का और सभी बुनकर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रही हूं। इस सरकार ने बुनकर, खास करके वूल का जो धागा है, ऊनी धागा, उसके ऊपर सब्सिडी रोक दी है और ये सबसे ज्यादा प्रभाव जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के जो बुनकर है उनके जीवन पे पड़ रहा है। आज हजारों की तादाद में बुनकर जो है वो बिना धागे के बैठे हुए हैं, उनकी जीवन जो कमाने का जरिया है वो खत्म हो गया है, जिसमें काफी सारी महिलाएं, हजारों की तादाद में महिलाएं जो घर में बैठकर अपनी खड्डियां लगा के उन पे काम करती हैं और अपने आय का साधन बनाती है, उस पे इन्होंने सब्सिडी जो है वो रोक दी है और सूती के धागे पर और रेशमी के धागे पर दे दी है, क्योंकि बनारस में जहां से प्रधानमंत्री है वहां पे रेशम का काम होता है, वहां पे तो सब्सिडी दे दी गई है और सूत पे दे दी गई है, क्योंकि गुजरात में और महाराष्ट्र में और साउथ में सूत का काम होता है। हमारे हिमाचल के लोगों के साथ ये सबसे बड़ा अन्याय है, गरीब लोगों के साथ अन्याय है, जहां पे इन्होंने सब्सिडी बंद कर दी गई है। तो मैं सरकार से ये कहूंगी कि इस सब्सिडी को जारी किया जाए, जिससे कि हजार, केवल हिमाचल ही नहीं है, उत्तराखंड भी है, जम्मू कश्मीर भी, यहाँ तक कि ऊन की जो शॉलें हैं वो राजस्थान में भी बनती है, उन सब पे इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी है। ये क्या गरीबों का भला करने जा रहे हैं? क्या ये सारे देश को एक जैसा देखते हैं? नहीं, ये केवल अपना ही फायदा सोचते हैं, अमीरों लोगों के साथ वो काम करते हैं। तो इससे आज हिमाचल में त्राही त्राही हो रही है। वहां का बुनकर, कुल्लू का बुनकर, किन्नौर का बुनकर, कांगड़े का बुनकर और यहाँ तक कि सभी बुनकर जो है आज हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इतना महंगा धागा वो नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए मैं ये बार बार कहूंगी कि इस पे सब्सिडी दी जाए, जारी की जाए, जिससे कि वहाँ के लोगों को फायदा हो सके, वहाँ की औरतें जो है अपना वो जीवन यापन कर सके। यही मैं विषय उठाने जा सकती और ये कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी सरकार से कि वो गरीबों का धन करे। एनडीआर हाउस एग्री। मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज ऊन के धागे की वजह से हिमाचल के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। वहां के बुनकर जो है आज हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। क्या इस तरह से हम गरीबी दूर कर सकेंगे? हम हथकरघे की बात करते हैं, ये गांधी की बात करते हैं और जो स्वदेशी चीजें हैं उनको ये खत्म करने जा रहे हैं। आज पावर लूम की बात करते हैं, वो धागे दिए जा रहे हैं। टाइम ओवर, टाइम ओवर।
the names who associate will be added. Yeah, there is full support. Now, Srimati Jarnadas Vaidya. Srimati Jarnadas Vaidya. Jarnadas Vaidya. You support, that's enough. No. What I am saying, this issue of weavers after the agriculture, the second largest employment is by the textile, handloom, handicraft sector. This government is going to do away. And what the proposals are, this is a very serious development. It is not only the question of sustenance, but this is livelihood, over. but sir, this is, yes, but this is also the issue, is a larger one, how to preserve what is traditionally the rich heritage of this country. That will get destroyed in the process. Okay. Though it has been raised from the zero hour, Jarnadas the Vaidya. government must come clean on this. Srimati Jarnadas Vaidya. Ansari Jarnadas Vaidya का टाइम आप मत ले लो. Yeah, honorable lady member Jarnadas Vaidya standing. Vaidya, don't encroach upon her time. Thank you, yes, sir. please. सर, मेरा 0 आवर है. रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है, इसका रिटायरमेंट के बाद और ऐसे भी मौत होने के बाद उसका ऊपर निर्भरशील, वह उसका हस्बैंड का मौत होने के बाद विडो, डिवोर्सी और अनमेरिड जो महिला है, उनका फैमिली पेंशन बंद कर रहा है. तो ऐसे ये जो डिवोर्सी और अनमेरिड और विडो जो महिला है, वो ऐसी डिप्राइव है. ये बहुत सारी है हमारा देश में, करोड़ों होगा. तो ऐसे सामाजिक स्तर पर ये महिला जो है आर्थिक सामाजिक शोषण का शिकार है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ऐसे सिद्धांत लेते हैं, मुझे मालूम नहीं है. महिला के ऊपर जैसे सामाजिक स्तर पर आंगनवाड़ी हो, आशा हो, और सामाजिक स्तर पर जो स्कीम था उसका डेवलपमेंट के लिए, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो उसमें भी एलोकेशन काट किया है. तो क्यों ऐसे कर रहा है? महिला के ऊपर ये आघात करने का क्या मतलब है केंद्रीय सरकार का? मैं ये जानना चाहती हूँ क्यों महिला के ऊपर यह आक्रमण हो रहा है. मैं ये दावी करती हूँ जो महिला ऐसे महिला है समाज में, उसको पेंशन दिया जाए, ग्रांटिंग एड में अनुदान दिया जाए. वो अनुदान ऐसे होगा जब 500 रुपया 300 रुपया केंद्रीय सरकार से मिलते हैं. क्यों? जितना प्राइस राइस है इसके साथ मिला के 300 रुपया ये पेंशन हो सकते हैं, 300 रुपया अनुदान हो सकता है? ये नहीं हो सकते. हाँ, मैं मांग करती हूँ, ये हाउस के सामने मैं रखती हूँ, सर ये पेंशन 6000 रुपया होना चाहिए, 6000 रुपया होना चाहिए. और जो पेंशन देते हैं वो 300 रुपया क्यों देते हैं? हमारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट त्रिपुरा में डिवोर्सी और जो अनमेरिड एंड विडो महिला को 500 रुपया करके खुद पेंशन देते हैं. तो केंद्रीय सरकार क्यों नहीं दे सकते? केंद्रीय सरकार के पास पैसे नहीं है, महिला लोग सब मर जाए तो अच्छा होगा. टाइम ओवर. डॉक्टर संजय सिंह, अभी बैठिए, नथिंग गोइंग, रिकॉर्ड में नहीं जाता है, अभी बैठिए. डॉक्टर संजय सिंह, यस यू कैन एसोसिएट, यस ऑल द एसोसिएटिंग नेम में बी ऑर्डर. डॉक्टर संजय प्लीज स्टॉप. माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आज इस महत्वपूर्ण विषय कृषि विविधीकरण योजना पर जो पूरे देश में लागू करने की मैंने सुझाव देने का प्रयास किया है, इसके लिए आपने वक्त दिया. पूरे देश भर में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और असामयिक तमाम सारी आपत्तियों की वजह से किसान पूरे देश में आज पीड़ित है और पूरे सदन ने इसके बारे में चिंता भी व्यक्त की है.
आज बहुत सारी आत्महत्याएं हुई हैं, इसके बारे में भी आपको सबको पता है। वर्तमान समय में आज चाहे नए बीज हो, उर्वरक हो, फसल हो, सुरक्षा, रसायन, सिंचाई, इस सब के व्यवस्था में आज इतना जो भी निवेश है इतना महंगा है और किसान जो उत्पादन करता है वो बहुत सस्ता है। माननीय महोदय, आज सबसे ज्यादा पीड़ित आढ़तियों से भी किसान है, उसका अपना जो उत्पादन है उसका सही समय पर और सही दाम बिल्कुल उसको नहीं मिल रहा है। मैंने सुल्तानपुर में 2-3 गांवों का सर्वे किया था। अगर आर्थिक रूप में गांवों को अगर एक यूनिट मानिए तो वह यूनिट आज आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। केवल किसान जो खाता है, पशुओं को जो अपना चारा देता है, वही उसका लाभ है। अगर वो सम्मान पूर्वक अपनी बेटी की शादी करना चाहे, अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहे, तो यह लगभग असंभव है। आज इतनी विपत्तियों के बीच में आज किसान झेल रहा है गांव में। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मौसम प्रतिकूल बना रहा, तो सरकार के पास कोई साधन नहीं होगा कि उसको कंपनसेट कर सके। माननीय महोदय, मैं अपना सुझाव आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूं। अंग्रेजी में कहावत है, डोंट पुट यू ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आज उत्तर प्रदेश में एक 98 से लेकर के 2004 तक एक स्कीम चली थी वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से कि लोग अपना पशुपालन, मत्स्य पालन, अपने फलों का, मशरूम का, मधुमक्खी पालन, ये सारी चीज़ों पर उनको मदद की जाए कि अगर मान लीजिए मौसम की मार हो तो इन सारी चीज़ों से उसको लाभ मिल सकता है। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार को भी इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज जो स्कीम इस तरह से कृषि विविधीकरण की है कि जो किसान के पास पशुपालन या जिस तरह से और भी साधन है खेती से अतिरिक्त, उस पर एक पूरे देश में ऐसी स्कीम बने जिससे कि उसको मदद के साथ उधर उसको प्रेरित किया जाए, जिससे किसान अपना सारा काम, अपना मेहनत का, अपना हर चीज कोशिश करके अपने लाभ के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए और अपने परिवार के बच्चे के और इन सबको आगे बढ़ाने के लिए इन सारी चीजों में तत्पर हो सके। मैं समझता हूं इस योजना को लागू करने से जो आत्महत्या हमारे देश में किसानों ने किया है उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर सरकार इसके बारे में विशेष ध्यान देती है। थैंक यू। श्री रामदास अतवाले। श्री रामदास अतवाले। उपाध्यक्ष महोदय, एचआरडी मिनिस्टर के अंडर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये संस्था आती है और इसके अंतर्गत मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज हो या एमबीए हो या होटल मैनेजमेंट हो, तो मतलब 15-15, 16-16 साल से कॉलेज चल रहे हैं। देश भर में 2100 कॉलेज है और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने, AICTE ने मतलब 600 कॉलेजेस को नोटिस दिया है बंद करने का और इससे कम से कम 3 लाख स्टूडेंट पर इसका इफेक्ट हो रहा है और इसीलिए मतलब और महाराष्ट्र में हमारे 33 कॉलेजेस है। तो मेरा कहना यह है कि अगर इनको परमिशन दे दिया था तो उनको सब मतलब नॉर्म्स में वो कॉलेज मतलब आते थे और इसीलिए उनको तो मान्यता दे दी थी। लेकिन अगर अभी इसको बंद करने से 3 लाख स्टूडेंट पर इसका इफेक्ट होने वाला है और इसीलिए एचआरडी मिनिस्ट्री से हमारा निवेदन है ये 600 कॉलेज जो नॉर्म्स है उसको बदलने के लिए उनको आदेश दिया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए और 600 कॉलेज को बंद करने का जो ऑर्डर दे दिया है उसको रद्द करना चाहिए और उनको मतलब सुधारने का मौका भी देना चाहिए कि ताकि स्टूडेंट का नुकसान ना हो। तो ये मैं एचआरडी मिनिस्ट्री से अपील करना चाहता हूं कि 600 कॉलेजों को होना चालू करने का आदेश दिया जाए। ओके, धन्यवाद। शशिकला पुष्पा। श्रीमती शशिकला पुष्पा। Thank you, Deputy Chairman, sir. So I raise a very serious issue with regard to the missing vessel with 8 crew members sailing from Andaman to Nicobar Island. Sir, Mrs. Maria Columbia, a lady from Thoothukudi district, conveyed with deep sorrow that her husband, Mr. Keitan, 36 years old, is missing with 7 other crew members who were sailing from Andaman, Port Blair to Car Nicobar Island in a vessel named Our Lady of Velangani TNN 78. Due to bad weather, the vessel was halted at Teresa Island at Hud Bay on 13th December 2014, and again on 15th December 2014, they started sailing to Car Nicobar Island. Since then, there was no communication with the vessel and those members, sir. The Coast Guard simply said that the vessel was missing.
by the sincere and consistent efforts of our Tamil Nadu government, guided by Dr. Puratchi Thalavi Amma, Indian Coast Guard indulged in search operations for 3 days and later informed that the whereabouts of the vessel are not to be located. Sir, today, 4.5 months passed, no progress in the rescue operations. The families of the 8 life in despair and uncertainty. Sir, my simple questions are, number 1, is this the value of the lives of hardworking fishermen in this country? Number 2, what is the infrastructure or mechanism India have in such rescue operations? Number 3, how the government going to answer to the young agonist women standing with 2 children on the seashore, waiting with the ray of hope that her husband would return some way or other? She is of the strong belief that the husband will be somewhere alive, at least as a captive of the tribals in a nearby island. Sir, India, a nation, proudly climbs #1 democratic country in the world with high standards of advanced technology, is not able to locate a missing vessel carrying 8 precious lives. The famous Tamil poet Mahakavi Bharatiyar said, "Tani orumanukku unavillai enil, ijjagathinai azhithiduvom." Sir, which means if there is no food for an individual, better destroy the whole world. But here in this case, the very existence of the 8 precious lives is a question mark. Sir, recently when a Malaysian aircraft vanished, the whole international community came forward to help in the rescue operation by extending all the advanced technologies. Sir, this incident clearly shows that the disaster management in the country is very poor and weak and is not up to the mark. Sir, Article 21 of the Constitution, which provides for the protection of the life to every citizen in this country, whereas here 8 lives are in peril. When a citizen in this country is not enjoying the basic rights guaranteed by the Constitution, where else than this forum can we go and plead, sir? So the Tamil Nadu government, under the able leadership of our leader, Dr. Puratchi Thalavi Amma, extending all logistic assistance in search of this operation mission. All right. I think, yes, I think Mr. Naqvi, please convey it to the concerned minister and come back to the house with a statement. Sir, I will convey, what is the portion? Yeah. I convey the feeling Yeah, of the yeah. honorable member. It's a very serious to the matter. concerned minister. After so many months, so many Indians are missing and we are not able to. In fact, yeah, everybody is supporting. In fact, government, see, doing a lot of good job. You are doing in Nepal, and when people were stranded in Yemen, then what about these poor people? Do something. Come back to the house. Sri Motilal Vora. This issue Sri is a very Motilal serious Vora. issue and I convey and Yeah. Yeah, I directed. They will come back with a statement. You have to come back with a statement. Please tell them. Sri Motilal Vora. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की राजधानी समेत देश के 35% बच्चे खराब स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। ब्रीथ ब्लू 15 नाम से बच्चों पर किए गए देशव्यापी सर्वे में अकेले दिल्ली में 21% बच्चों के फेफड़ों की क्षमता बेहद खराब है। इसी प्रकार बेंगलुरु में 22%, कोलकाता में 26% और मुंबई में 14% बच्चों के फेफड़ों की क्षमता बेहद खराब है और राष्ट्रीय स्तर पर 35% बच्चे खराब स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। यह निष्कर्ष बच्चों के फेफड़ों की स्क्रीनिंग LHST के बाद निकाला गया है। बच्चे देश का भविष्य हम बार बार कहते हैं। ये तो मैंने शहरों की बात कही है, लेकिन अगर आदिवासी अंचलों में अगर आप जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में किस प्रकार की लापरवाही होती है। बच्चे देश का भविष्य है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इसके कारणों का पता लगाने और इसके निदान के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाएं। साथ ही मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि जब योग का देश विदेश में जमकर प्रचार हो रहा है, तभी स्कूलों में भी कुछ समय योग के लिए निर्धारित किया जाए ताकि बच्चे तनाव से दूर रह सकें और स्वस्थ रह सकें। Just lay. That's all. Your number laying. That's all. That's okay. Sri Chaudhary Manwar Salim. सभापति महोदय, मैं हिंदुस्तान की 1/5 आबादी
यानी मुसलमानों के हज के फरीजे को लेकर कुछ जो समस्याएं हैं उनको लेकर खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के हाजियों की कठिनाई के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने दिनांक 1/4/15 को माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है तथा हज मंत्री माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने विदेश मंत्री जी को दिनांक 12/3/2015 को अवगत कराया है, लेकिन अफसोस इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। माननीय सभापति महोदय, हिंदुस्तान की 1/5 आबादी उत्तर प्रदेश से जाती है हज के सफर पर और सेंट्रल हज कमेटी जिस तरह का उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव करती है वो सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं। सेंट्रल हज कमेटी ने ये पाबंदी लगा दी है कि अमुक कंपनी से, ये हिंदुस्तान के हाजियों का दर्द है, अमुक कंपनी की अटैची ही लेकर ही हज के सफर पे जाना होगा। इससे ये लगता है कि चेयरमैन हज कमेटी और अटैची कंपनी के बीच कुछ गोलमाल है। वो गरीब हाजी जो तहमत और कुर्ता पहनकर और अपने कंधे पे पुटलिया बांधकर अपना हज धार्मिक सफर तय करता था, उसको किसी कंपनी की अटैची की पाबंदी लगाना ये नया काम है और हाजी इस पर कहा रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि 2001 की मुस्लिम जनसंख्या की गणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2014 में समस्त जिलों को मिलाकर 23,688 हाजियों को भेजा गया था, जो इस बार 1,650 की संख्या कम कर दी गई है, जबकि 2014 में गुजरात के 3,536 हाजियों को भेजा गया था और वहां बढ़ाकर दुगनी यानी 6,272 कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश के साथ इंसाफ करे। माननीय अटैची के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि सरकार अपनी ओर से उत्तर प्रदेश के हाजियों को अटैची देगी, लेकिन हज कमेटी के चेयरमैन और सरकार की ओर से आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया, जो अफसोसनाक है, जबकि वो ऐसा फैसला था कि हिंदुस्तान भर की हज कमेटियों को उससे सबक लेना था। इसी तरह वो ट्रैवल एजेंसी, वो अभी सर टाइम है, वो ट्रैवल एजेंसी जिसकी बस हर बार लगाई जाती थी और पिछली बार हमारे उत्तर प्रदेश के हाजी आग लगने के कारण उन बसों से मरते मरते बचे थे, उनका सामान जल गया था, उसी कंपनी को जो वहाँ हाई कमीशन के लोग बैठे हैं और हज कमेटी के चेयरमैन, इन्होंने मिलकर उसी कंपनी को फिर ठेका दिया है, जबकि दूसरी कंपनियां खड़ी हुई हैं इस बात के लिए कि हम और अच्छी बसेज लगा सकते हैं। ये हज के सफर की जो कठिनाइयां हैं इनको दूर करने के लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। All the name associated added Sanjay Rao to start. No time for you. जल्दी जल्दी। अलगाववादी संगठन हुर्रियत के Nothing else will go on record. संजय राव उस वक्तव्य पर कि सर जल्दी अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे वक्त पर चिंता करते हुए शुक्रवार को पुलवामा में एक रैली में फिर पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। इस रैली में गिलानी ने राज्य के मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार को चेतावनी दी कि अमरनाथ यात्रा 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं चलनी चाहिए। सर, अत्यंत गंभीर है। सर, मेरा गृह मंत्रालय से ये आपके माध्यम से सवाल है कि हमारे देश में धार्मिक यात्राएं कैसी हो और कितने समय तक हो, ये बताने का अधिकार पाकिस्तान के एजेंटों को किसने दिया है। सर, लगातार पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले मिस्टर गिलानी बार बार अमरनाथ यात्रा के ऊपर जिस तरह से वक्तव्य दे रहा है, उससे पूरे जम्मू कश्मीर का नहीं पूरा देश का माहौल बिगड़ सकता है। सर, अमरनाथ यात्रा का संबंध सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व भर के हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। वर्षों से अमरनाथ यात्रा होती है और उसे किसी समय में नहीं बांधा जा सकता। सर, कश्मीर हिंदुस्तान का गर्व है और विश्व का नंदनवन है। यहाँ पर्यटन सबसे बड़ा व्यवसाय है, रोजी रोटी का साधन है। कश्मीर में पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ के लोगों के चूल्हे जलेंगे, रोजगार मिलेगा। अमरनाथ यात्रा से करोड़ों श्रद्धालु कश्मीर में आते हैं और उससे स्थानिक लोगों को फायदा होता है। Yes, time over. It's time for question hour. Time over. धन्यवाद।